آج میں آپ کو دو ایسی سچی کہانیاں سناؤں گا جو آپ کی رگوں میں خون جما دیں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ڈراؤنی اور حقیقی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی راؤ وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی کہانی۔ یہ واقعہ ہے کراچی کے رہنے والے دو نوجوان دوستوں کا، جن کے نام تھے احسان اور خرم۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کئی سفر کر چکے تھے، لیکن جو سفر وہ اس بار کرنے والے تھے وہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک اور ہولناک تجربہ بن جانے والا تھا۔ ایسا تجربہ جو آج بھی ان کے خوابوں میں آ کر انہیں جگا دیتا ہے۔ احسان کے ایک قریبی دوست پیسفک کی شادی تھی، جو بہاولپور کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا۔ دعوت نامہ آیا تو دونوں دوستوں نے فوری طور پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ احسان اور خرم کو ٹرین کے سفر کا بہت شوق تھا۔ پرانی ڈبوں کی خاموشی، پٹریوں کی کھٹ کھٹ کی آواز، کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے منظر، یہ سب انہیں ہمیشہ سے پسند رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار بھی ٹرین سے ہی سفر کریں گے۔ جب احسان نے پیسفک کو فون پر بتایا کہ وہ ٹرین سے آ رہے ہیں تو پیسفک نے انہیں ایک خاص ہدایت دی۔ اس نے کہا، دیکھو احسان، تم بہاولپور کے مین اسٹیشن پر مت اترنا۔ اس سے ایک اسٹیشن پہلے، جس کا نام رحیم یار خان جنکشن کے بعد خانپور جنکشن سے پہلے ایک چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے، اس کا نام بستی ملوک ہے، وہاں اتر جانا۔ وہاں سے میرا گاؤں صرف 15 منٹ کی دوری پر ہے، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا، ورنہ بہاولپور سے میرے گاؤں تک 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے اور رات کو گاڑی ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ احسان اور خرم اسی منصوبے کے ساتھ کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات 8 بجے کی ٹرین میں سوار ہوئے۔ سفر اچھا گزر رہا تھا۔ دونوں دوست باتوں میں مصروف تھے، کبھی چائے پیتے، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتے۔ رات کے قریب 11 بج چکے تھے اور ٹرین اپنی رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب زیادہ تر مسافر سو چکے تھے، ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن کی طرف آنے لگی۔ اعلان ہوا، اگلا اسٹیشن بستی ملوک، ٹرین یہاں صرف 5 منٹ کے لیے رکے گی۔ احسان اور خرم نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی ٹرین رکی وہ اتر گئے، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اسٹیشن بالکل ویران اور سنسان تھا۔ پلیٹ فارم پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک مدھم سی بلب کی روشنی تھی جو پلیٹ فارم کے ایک کونے میں ٹمٹما رہی تھی۔ اسٹیشن کی دیواریں پرانی اور بوسیدہ تھیں، جن پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ٹرین کے چند مسافروں نے جو ان کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے انہیں دیکھ کر حیرت سے پوچھا، بھائی آپ لوگ یہاں کیوں اتر رہے ہیں؟ احسان نے جواب دیا، ہمارا دوست ہمیں لینے آ رہا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے جو ان کے پاس کھڑا تھا سنجیدگی سے کہا، بیٹا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ اسٹیشن بہت پرانا اور لاوارث ہے، یہاں رات کو اترنا ٹھیک نہیں، تم لوگ بہاولپور چلے جاؤ، وہاں سے اپنے دوست کو بلا لینا۔ ایک عورت نے بھی کہا، واقعی بیٹے یہ جگہ سنسان ہے، یہاں رات کو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جنات کا مسکن ہے۔ لیکن احسان اور خرم نے ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ بس فضول ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا دوست آنے والا ہے۔ ٹرین کی سیٹی بجی اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ چند سیکنڈز میں ٹرین پلیٹ فارم سے دور ہو گئی اور اس کی آواز بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ اب پلیٹ فارم پر صرف احسان اور خرم رہ گئے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جو دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ احسان نے اپنا موبائل نکال کر پیسفک کو فون ملانے کی کوشش کی، لیکن فون نہیں لگا۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو پتا چلا کہ یہاں نیٹ ورک ہی نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ خرم نے کہا، یار یہ تو مشکل ہو گئی، نیٹ ورک نہیں اور پیسفک کا کوئی پتہ نہیں۔ احسان نے اطمینان سے کہا، کوئی بات نہیں، وہ آ رہا ہوگا، شاید اسے ذرا دیر ہو گئی ہو، تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ دونوں پلیٹ فارم پر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا، 10 منٹ، 15 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، لیکن پیسفک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب رات کا 1 بج رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ خرم نے بے چینی سے کہا، احسان مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی، یہاں کچھ عجیب سا ماحول ہے۔ احسان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسٹیشن واقعی بہت پرانا لگ رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے پوسٹر لگے ہوئے تھے جو اڑ چکے تھے۔ ٹکٹ کاؤنٹر کا شٹر بند تھا اور اس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ باہر کی طرف جانے والا راستہ بھی اندھیرے میں گم تھا۔ احسان نے کہا، چلو ہم باہر چلتے ہیں، شاید کوئی چائے کی دکان یا کوئی آبادی مل جائے، وہاں سے ہم کسی کا فون استعمال کر کے پیسفک کو بتا دیں گے۔ دونوں اپنا سامان اٹھا کر اسٹیشن سے باہر نکلے۔
बाहर एक कच्ची सड़क थी जिस पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी थी जो बादलों में छिपी हुई थी। उन्होंने रेलवे की पटरी क्रॉस की और बाईं तरफ चलने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस तरफ कोई गांव या आबादी होगी। रास्ता बहुत वीरान था। चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार झंडियां थीं। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दोनों खामोशी से चलते रहे। तकरीबन 10-15 मिनट चलने के बाद उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये औरतों की आवाजें थीं, जैसे वो आपस में बात कर रही हों। खुर्रम ने खुशी से कहा, सुन रहे हो? लगता है कोई आबादी है, चलो वहीं चलते हैं। एहसान ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों आवाजों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आवाजें तो आ रही थीं, लेकिन उनमें कोई वाज़े अल्फाज नहीं थे। ये एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुराने कुएं से आ रही हो। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बहुत बड़ा खुला मैदान नजर आया, और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिल में एक ठंडा सा लर्जा दौड़ा दिया। ये मैदान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान था। सैकड़ों कब्रें थीं, जिनमें से बहुत सी टूटी फूटी और जमीन में धसी हुई थीं, और दरमियान में एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर 6-7 औरतें बैठी थीं। इन औरतों ने सबने सफेद लिबास पहना हुआ था, जो मैला और फटा हुआ था। इनके सर ढके हुए थे और वो आपस में किसी अजीब जबान में बात कर रही थीं। इनकी आवाजें बहुत तेज और कर्कश थीं, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। एहसान और खुर्रम वहीं रुक गए। उनके कदम जम गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुर्रम ने धीमी आवाज में कहा, एहसान, ये जगह बहुत अजीब है, चलो यहां से वापस चलते हैं। लेकिन एहसान ने कहा, नहीं यार, शायद ये कोई आम लोग हों, हम इनसे रास्ता पूछते हैं, हो सकता है ये करीब की किसी आबादी से आई हों। एहसान ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। वो धीरे धीरे चबूतरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब आए, इन औरतों की आवाजें तेज हो गईं, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी। एहसान ने हिचकिचाते हुए आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा। एकदम सन्नाटा छा गया। इन औरतों ने बात करना बंद कर दिया। एहसान और खुर्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। एहसान ने फिर कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें करीब की किसी आबादी का रास्ता बता सकती हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो औरतें बिल्कुल साकित बैठी रहीं। उनके चेहरे उनकी चादरों में छुपे हुए थे। खुर्रम ने एहसान का बाजू पकड़कर कहा, यार यहां से चलो, ये लोग जवाब नहीं दे रही। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ते, एक औरत ने आहिस्ता से अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी जान निकाल दी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे चूने से लिपा हुआ हो। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और अंधेरे में चमक रही थीं, बिल्कुल जानवरों की तरह। उसके होंठ काले थे और जब उसने मुंह खोला तो उसके दांत बहुत तेज और नुकीले नजर आए। वो औरत आहिस्ता से खड़ी हुई और फिर एक एक करके बाकी औरतें भी खड़ी होने लगीं। जब वो पूरी तरह खड़ी हुई तो एहसान और खुर्रम को एहसास हुआ कि ये आम औरतें नहीं हैं। इनका कद बहुत लंबा था, लगभग 7-8 फीट। इनके हाथ बहुत लंबे थे और इनकी उंगलियां भी बहुत पतली और लंबी थीं। अचानक उनमें से एक औरत ने एक अजीब सी आवाज निकाली। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और फिर वो सब की सब एहसान और खुर्रम की तरफ दौड़ने लगी। एहसान चीखा, भागो! दोनों दोस्त जान बचाकर भागने लगे। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, बस भागे जा रहे थे। इनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि लग रहा था फट जाएंगे। इनके कान में इन औरतों की चीखें गूंज रही थीं। वो भागते रहे, भागते रहे। झाड़ियां इनके कपड़ों को चीर रही थीं, कांटे इनके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं, बस स्टेशन तक पहुंचने की जल्दी थी। खुर्रम ने पीछे मुड़कर एक नजर देखा और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो औरतें बहुत तेजी से इनका पीछा कर रही थीं। वो दौड़ नहीं रही थीं, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर होकर तैर रही थीं। इनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। खुर्रम ने चीख कर कहा, एहसान, ये हमारे बिल्कुल करीब आ गई हैं। एहसान के जहन में अचानक एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाली। उसे याद था कि उसके दादा ने कहा था कि जिन्नात और शयातीन आग से डरते हैं। उसने करीब की सूखी झाड़ियों की तरफ लाइटर फेरी और आग लगा दी। सूखी झाड़ी फौरी तौर पर भड़क उठी। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं और अचानक एकदम से वो चीखें रुक गईं। एहसान और खुर्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरतें रुक गई थीं। वो आग से दूर खड़ी थीं और एक अजीब आवाज में चीख रही थीं। इनकी आंखों में खौफ था। आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटने लगीं और फिर एकदम से गायब हो गईं,
जैसे उन्होंने हवा में हल हो गईं। एहसान और खुर्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पसीने से तर थे और उनकी सांसें फूली हुई थीं। खुर्रम ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये क्या था एहसान? एहसान ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी था वो इंसान नहीं थे। चलो यहां से निकलते हैं। दोनों वापस स्टेशन की तरफ भागे। इनके पैर कांप रहे थे और वो ठोकरें खा खाकर गिर पड़ रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। बस स्टेशन तक पहुंचने की जल्दी थी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस स्टेशन पहुंचे। दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। उनका जिस्म थकन और खौफ से टूट चुका था। रात के 2 बज चुके थे। एहसान ने फिर से मोबाइल चेक किया। अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें दूर से एक गाड़ी की रोशनी नजर आई। एक पुरानी सुजुकी पिकअप स्टेशन की तरफ आ रही थी। गाड़ी रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। वो तकरीबन 50 साल का था, सफेद दाढ़ी और पगड़ी बांधे हुए। उसने आकर पूछा, क्या आप एहसान साहब हैं? एहसान ने फौरी तौर पर कहा, जी मैं एहसान हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं पासिफिक भाई ने भेजा है। मेरा नाम फकीर मोहम्मद है। पासिफिक भाई को बहुत माफ़ी है, उनकी वालिदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए वो अस्पताल गए थे। उन्होंने मुझे भेजा है कि आप लोगों को ले आऊं, मगर आप लोगों को यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। ये जगह बहुत ख़तरनाक है। एहसान ने कहा, चचा हमने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फ़कीर मोहम्मद ने संजीदगी से कहा, आप लोगों ने क्या देखा? एहसान और खुर्रम ने पूरा वाक़या सुनाया। कब्रिस्तान, वो अजीब औरतें, उनका पीछा करना और फिर आग लगाकर बचना। फ़कीर मोहम्मद ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब खौफ था। उसने कहा, बेटा अल्लाह ने आप लोगों की हिफाजत की। आप लोगों को पता है आपने क्या देखा? वो औरतें आम औरतें नहीं थीं, वो चुड़ैलें थीं। ये इलाका बहुत पुराना है। यहाँ 800 साल पुराना ईसाई कब्रिस्तान है। बरतानवी दौर में यहाँ एक बहुत बड़ी ईसाई आबादी थी, लेकिन यहाँ पर काला जादू और टोने टोटके बहुत ज़्यादा होते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जादूगरनियाँ रहती थीं जो शैतानी रसूमात करती थीं। वक्त के साथ साथ ये जगह लानती हो गई। यहाँ जिन्नात और चुड़ैलों का मस्कन बन गया। 50-60 साल पहले यहाँ की पूरी आबादी खाली कर दी गई थी। लोग रात में यहाँ से गुजरने से डरते थे। ये स्टेशन भी तकरीबन 15 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत से वाक़यात हो चुके थे। लोग गायब हो जाते थे, उनकी लाशें तक नहीं मिलती थीं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने आग का इस्तेमाल किया। ये मखलूक़ात आग से बहुत डरती हैं, वरना आप लोग आज यहाँ ना होते। एहसान और खुर्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने बड़े खतरे से बचे थे। फ़कीर मोहम्मद ने कहा, चलें अब गाड़ी में बैठ जाएं, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठ गए और फ़कीर मोहम्मद ने गाड़ी चला दी। जैसे जैसे वो उस जगह से दूर होते जा रहे थे, उन्हें थोड़ा सुकून महसूस होने लगा। लेकिन वो रात, वो कब्रिस्तान, वो अजीब औरतें और उनकी चीखें, ये सब कुछ उनके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। आज भी जब एहसान या खुर्रम को कोई इस बारे में पूछता है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहते हैं, अल्लाह ने हमें दोबारा ज़िंदगी दी। अब मैं आपको एक और खौफनाक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है कराची की रहने वाली एक नौजवान लड़की मारिया की। मारिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन मारिया की एक अजीब दिलचस्पी थी जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मारिया को गैब की दुनिया, जादू टोने और ख़ास तौर पर काले जादू में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें सर्च करती, ऐसी वीडियोस देखती और ऐसी किताबें पढ़ना चाहती थी जिनमें जिन्नात को बुलाने और कंट्रोल करने के तरीके लिखे होते थे। उसके घर वाले, उसके दोस्त, सब ने उसे मना किया था कि ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ये बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन मारिया ने किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन मारिया सदर के एक पुराने बाजार में घूम रही थी। वहाँ उसे एक बहुत पुरानी किताबों की दुकान नजर आई। दुकान का मालिक बहुत बूढ़ा और अजीब सा था। उसकी आंखें गहरी थीं और वो एक अजीब मुस्कुराहट के साथ मारिया को देख रहा था। मारिया ने दुकान में जाकर पूछा, क्या आपके पास काले जादू या जिन्नात से मुताल्लिक कोई किताब है? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर कहा, बेटी ये रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम वापस चली जाओ। लेकिन मारिया ने इसरार किया। उसने कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे किताब चाहिए। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और दुकान के पिछले हिस्से से एक बहुत पुरानी
मोटी चमड़े में जिल्द वाली किताब निकाली। किताब पर अजीब निशानात बने हुए थे। उसने कहा, ये लो, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें मना किया था। मारिया ने खुशी से किताब ली, पैसे अदा किए और घर चली गई। रात को जब घर में सब सो गए, मारिया अपने घर की छत पर बने एक छोटे से स्टोर रूम में चली गई। ये कमरा बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। यहाँ पुराना सामान रखा हुआ था। मारिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि कैसे एक खास जिन को बुलाया जाता है और उससे अपनी मर्जी का काम करवाया जाता है। किताब में एक जिन का नाम था शम्मरूश, जिसे बहुत ताकतवर कहा गया था। किताब में लिखा था कि 3 रातों तक एक खास मंत्र पढ़ना है और एक खास तरीके से उस जिन का चेहरा कागज पर बनाना है। तीसरी रात वो जिन हाजिर हो जाएगा। मारिया ने सोचा, चलो देखते हैं ये सच है या झूठ। उसने पहली रात मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने एक कागज पर उस जिन का चेहरा बनाना शुरू किया। किताब में लिखा था कि चेहरा बिल्कुल सियाह होना चाहिए और आंखें सुर्ख। पहली रात गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी ऐसे ही गुजरी। मारिया ने मंत्र पढ़े और चेहरे को मुकम्मल किया। तीसरी रात आई। मारिया फिर से स्टोर रूम में गई। उस रात का मौसम बहुत अजीब था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मारिया ने आखिरी मर्तबा मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने आंखें बंद कर ली और पूरी यकसुई से मंत्र दोहराती रही। अचानक कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया। मारिया की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा, जो उसने अंदर से बंद किया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मारिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुल गया और फिर अचानक कमरे में रखी हुई चीजें गिरने लगीं। पुराने डब्बे, किताबें, सामान, सब कुछ खुद ब खुद गिरने लगा। मारिया खौफ से चीखी, ये क्या हो रहा है? और फिर अचानक एक आवाज गूंजी। ये आवाज बहुत गहरी और खौफनाक थी, ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं हो सकती। आवाज ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूँ। मारिया ने खौफ से पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसकी जान निकल गई। कमरे के एक कोने में हवा में एक काली शबीह थी। ये एक आदमी की शक्ल थी, लेकिन बिल्कुल सियाह। उसका चेहरा बेशक्ल था और उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख और चमकदार थीं। उससे एक अजीब बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मारिया की सांस रुक गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो शबीह मारिया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। मारिया चीखी और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में जुड़ गए थे। वो हिल नहीं सकती थी। वो जिन उसके बिल्कुल करीब आ गया। मारिया ने महसूस किया कि एक बर्फीला हाथ उसकी गर्दन को छू रहा है। उसके कान में वो खौफनाक आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। और फिर मारिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसके घर वाले उसके पास बैठे हुए थे। उसकी माँ रो रही थी। मारिया की माँ ने कहा, मारिया तुम 3 घंटे से बेहोश थी, तुम छत पर क्या कर रही थी? मारिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खौफ था। अगले दिन से मारिया की हालत बिगड़ने लगी। वो रात को सोती तो उसे अजीब ख्वाब आते, वही सियाह शबीह, वही सुर्ख आंखें। वो दिन में अचानक चीख पड़ती। उसे लगता जैसे कोई उसे पकड़ रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, शायद ये नफ्सियाती मसला है। लेकिन घर वालों को एहसास हुआ कि ये कुछ और है। उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए। उन्होंने मारिया को देखा और फौरी तौर पर समझ गए कि ये जिन्नात का मामला है। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, मारिया बेकाबू होने लगी। वो चीखने लगी, नहीं नहीं, बंद करो। उसके बाल खुद ब खुद खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको नोच रहा है। उसके जिस्म पर खराशें नमूदार होने लगी। मारिया ने महसूस किया जैसे कोई उसके अंदर से उसके जिस्म को चीर रहा है। मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी। तकरीबन 1 घंटे बाद मारिया को थोड़ा सुकून मिला। मौलवी साहब ने घर वालों से कहा, ये लड़की ने कोई बहुत बड़ी गलती की है। इस पर एक बहुत पुराना और ताकतवर जिन हाजिर है। ये जिन 20 साल से ज्यादा अरसे से किसी पर हाजिर था और अब ये इस लड़की पर काबिज हो गया है। ये आसानी से नहीं जाएगा। इसका इलाज बहुत मुश्किल और लंबा होगा।
घर वालों ने पूछा, कितना वक्त लगेगा? मौलवी साहब ने कहा, कम से कम 7 महीने, और ये बहुत कठिन होगा। और वाकई मारिया का इलाज बहुत तवील और तकलीफदेह था। हर रोज मौलवी साहब आते और कुरान की आयतें पढ़ते। मारिया को खास तरीके से दम किया जाता, उसे कुछ खास आमाल करने पड़ते। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे रात 12 बजे कब्रिस्तान में जाना पड़ता था। वहां एक खास रस्म अदा करनी होती थी। मौलवी साहब ने बकरा ज़बह किया और उसके कच्चे गोश्त पर कुछ आयतें पढ़ीं। फिर मारिया को वो गोश्त खाना पड़ा। ये सब अजियतनाक था। मारिया रोती रहती, चीखें मारती रहती, लेकिन इलाज जारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता महीनों की मेहनत के बाद मारिया की हालत बेहतर होने लगी। वो ख्वाब कम आने लगे, चीखें कम हो गईं। तकरीबन 7 महीने बाद मारिया ठीक हो गई। लेकिन वो रात, वो सियाह शबीह, वो सुर्ख आंखें, ये सब कुछ उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। आज भी जब मारिया इस वाक़े को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपनी गलती मान ली है और अब वो दूसरों को भी तंबीह करती है कि कभी भी काले जादू या जिन्नात से खेलने की कोशिश ना करें। ये रास्ता बहुत खतरनाक है और एक बार अगर आप इसमें दाखिल हो गए तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 खौफनाक और हकीकी कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आईं तो प्लीज़ राव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब